Hi everyone, I would like to start with my introduction. I am Dr. Anju Bala, Associate Professor in Commerce, Arya Girls College, Ambala, Kent. Today we are doing capital gains as per assessment year 2021. This is part 3 of capital gains, in which we are going to cover exemptions as per section 54 and section 10. So first of all, there is table of contents, capital gains exemptions, computation of capital gains exemptions under section 54. We have already covered 4 exemptions in capital gains part 2, 54, 54B, 54D, 54EC. हम ऑलरेडी कैपिटल गेन्स पार्ट 2 में कर चुके हैं, इसलिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एग्जाम्पशंस फ्रॉम सेक्शन 54EE. कैपिटल गेन arising from the transfer of long-term capital asset invested in units of specified fund, section 54EE. Capital gain on transfer of long-term capital asset other than house property, section 54F. Capital gain arising on transfer of assets in case of shifting of industrial undertaking from urban area to rural area, section 54G. Capital gain on transfer of assets in case of shifting of industrial undertaking from urban area to special economic zone, section 54GA. Exemptions under section 54H, exemptions under section 10, set off and carry forward of capital losses, and at last we'll be doing the important questions. So first of all, capital gain exemptions. एग्जेम्पशंस वो छूट है, वो रिलैक्सेशन है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से परमिटेड है. अगर हम कैपिटल गेन का पैसा उन प्रेस्क्राइब्ड इन्वेस्टमेंट्स में लगाते हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से परमिटेड है, कैपिटल गेन इज रिड्यूस्ड टू दैट वेरी एक्सटेंट. सो एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एसेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. That is, they will not be included in income of assessee for tax purposes. Exempted capital gains are categorized in 2 sections. Exemptions under section 54, जिसमें से हम 4 exemptions already कर चुके हैं. 54, 54B, 54D, 54EC. आज हम 5th exemption से start करेंगे. Exempted long term capital gains under section 10 भी हम इसी पार्ट में करेंगे. सो पहले हम शुरू करेंगे 54EE वाली एग्जेम्पशन से, उसके बाद विल बी डूइंग एग्जेम्प्टेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एज पर सेक्शन 10. सो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. कुछ एग्जेम्पशंस जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एलिजिबल है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से भी दी जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी एग्जेम्पशंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से दी जाती है. जैसे 54 सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से दी जाती है. 54B, 54D लॉन्ग टर्म में से भी दी जाती है, शॉर्ट टर्म में से भी दी जाती है. 54EC ओनली फ्रॉम लॉन्ग टर्म, 54EE ओनली फ्रॉम लॉन्ग टर्म, 54F लॉन्ग टर्म, 54G, 54GA, 54H ये लॉन्ग टर्म में से भी दी जाती है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से भी दी जाती है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54. वी हैव ऑलरेडी डन 4 एग्जेम्पशंस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 5th एग्जेम्पशन जो है अंडर सेक्शन 54EE. कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द transfer of long-term capital asset invested in units of specified fund with effect from assessment year 17-18. Any capital gain from long-term capital asset is exempted from tax if long-term capital gain is invested in units of specified fund as may be notified by central government. In this behalf, as per the following conditions, new asset should be purchased within 6 months from the date of transfer of original asset and investment should be made in units of specified fund which is notified by central government. हमने क्या किया
कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, इससे हमें क्या हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इससे हमने क्या खरीदे, यूनिट्स खरीदे ऑफ स्पेसिफाइड फंड विच इज स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कितनी देर में खरीदे, सबसे इंपॉर्टेंट है ड्यूरेशन, विद इन 6 months। और 31/7/2020 विच एवर इज अर्लियर, फुल एग्जेम्पशन मिलती है। फिर आता है हमारा विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन। दिस इज पोस्ट कंडीशन, न्यूली परचेज्ड एसेट्स इफ सोल्ड और प्लेज्ड विद इन 3 years, एग्जेम्पशन इज टेकन बैक। और अगर हम ये एग्जेम्पशन लेने के लिए पैसा कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा करवाते हैं ऑन और बिफोर 31/7/2020, देन अगेन फुल एग्जेम्पशन इज प्रोवाइडेड। इसकी स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट सेम है जो हमने सेक्शन 54 EC में करी थी। इसके बाद आता है द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। Who can claim the exemption, individual or HUF? Which specific asset is eligible for exemption? Capital gain arising on transfer of any long-term capital asset other than residential house property is qualified for exemption provided on the date of transfer the taxpayer does not own any residential house property. So, इसमें इस एग्जेम्पशन में हमें ये याद रखना है, दिस एग्जेम्पशन इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर सेकेंड रेजिडेंशियल हाउस। तो हमने क्या करना है, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी बेचा, उससे हमें क्या हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब अभी तक जो हम एग्जेम्पशन कर रहे थे उसमें हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्ट करते थे, लेकिन इस एग्जेम्पशन के लिए कैपिटल गेन on transfer of long term capital asset other than house property से जो नेट कंसिडरेशन है, इसका जो नेट कंसिडरेशन यानी सेल प्राइस, इससे हमने नया मकान खरीदा या बनवाया, परचेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस। अब हमें परचेज कब करना है, परचेज करना है हमने 1 year बिफोर सेल और विद इन 2 years, एंड कंस्ट्रक्शन कब करनी है, विद इन 3 years। स्पेसिफिकेशन सेम है, एज पर द टाइम लिमिटेशन इज सेम जो हमने 54 में करा था। हमने करा कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, इससे जो नेट कंसिडरेशन हुआ उससे हमने नया मकान खरीदा या बनवाया, परचेज कब करना है, 1 year बिफोर सेल और 2 years आफ्टर सेल, और कंस्ट्रक्शन कब करनी है, विद इन 3 years। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसमें हम कहते हैं प्रोपोर्शनेट गेन इज एग्जैम्प्टेड, प्रोपोर्शनेट गेन इज एग्जैम्प्टेड। एग्जैम्पशन किसकी मिलेगी, प्रोपोर्शनेट गेन इज एग्जैम्प्टेड। हाउ, प्रोपोर्शनेट गेन का क्या फॉर्मूला होगा, LTCG इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान रखना है, हमने कोई भी कैपिटल एसेट बेचा अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, उससे जो नेट कंसिडरेशन है उससे हमने नया मकान खरीदा या बनवाया। खरीदना कब है, 1 year बिफोर सेल और 2 years आफ्टर सेल। इन कंस्ट्रक्शन कब करवानी है, within 3 years। proportionate gain is exempted, this is the formula for proportionate gain। अब आता है in case of compulsory acquisition these time limits shall be determined from the date of receipt of compensation। आगे आता है how much is exempted, proportionate gain is exempted, formula LTCG into amount invested divided by net consideration। Post condition, if newly purchased or constructed house is sold within 3 years, exemption is withdrawn proportionately।
एंड इफ फॉर अवेलिंग एग्जेम्पशन, इसका सेक्शन रहेगा 54F सबसेक्शन 4। इफ फॉर अवेलिंग एग्जेम्पशन अमाउंट ऑफ नेट कंसिडरेशन is deposited in capital gain deposit scheme, then again proportionate gain is exempted. Formula रहेगा long term capital gain into amount deposited in CGDS divided by net consideration. Again, if amount deposited in capital gain account is not utilized or is partially utilized, balance is charged to tax as deemed capital gain proportionately. अब आते हैं हम एग्जाम्पल्स पे। अब एग्जाम्पल के लिए भी हमें क्या चीज याद रखनी है, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। हमने कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचना है एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी, उससे हमें जो नेट कंसिडरेशन मिली उससे हमने नया मकान खरीदा या बनवाया। सेम चीज याद रखनी है, परचेज करना है विद इन 1 ईयर बिफोर सेल, और परचेज कब करना है 1 ईयर बिफोर सेल, और ऑन और बिफोर 31/7/2020। रीजन, क्योंकि हम 1920 प्रीवियस ईयर और 2021 असेसमेंट ईयर का कैपिटल गेन्स कर रहे हैं, इसलिए द इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड ऑन और बिफोर 31/7/2020। परचेज कब करना है 1 ईयर बिफोर सेल और ऑन और बिफोर 31/7/2020, और कंस्ट्रक्शन ऑन और बिफोर 31/7/2020, और कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में कब डिपॉजिट करवाना है ऑन और बिफोर 31/7/2020। क्यों? क्योंकि हम 1920 प्रीवियस ईयर और 2021 असेसमेंट ईयर का कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। सेल ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड, सेल ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड, इसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 289,301 नेक्स्ट का है। कितना आया 8 लाख। 182,006 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है जिसका इंडेक्स नंबर है 122। हमने क्या करा 183,000 इंटू 289 डिवाइडेड बाय 122, तो मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया 366,500। इसके बाद आता है एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। क्योंकि हमने नया मकान कितने का बनवाया 7 लाख का, तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा LTCG इंटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन। तो 366,500 इंटू 7 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, दिस कम्स आउट टू बी 320,687। तो 366,500 में से 320,687 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है 45812। और याद रखना है कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 2019-20 का 289 है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेल प्राइस ऑफ ज्वेलरी इन सितंबर 2019 20 लाख, दिस इज द सेल प्राइस। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 7/8 का है 3,40,000। हमने इसका इंडेक्स करा तो आया 761,705। अब मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया 123,8,295। अब अमाउंट इन्वेस्टेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, फॉर्मूला लगेगा LTCG इंटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन। तो प्रोपोर्शनेट करके हमारा आया 371,489। अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम सेक्शन रहेगा 54F सबसेक्शन 4 LTCG इंटू अमाउंट डिपॉजिटेड इन CGDS डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन, प्रोपोर्शनेट करके आया 495,318। इन दोनों अमाउंट्स को हम LTCG में से माइनस करते हैं तो हमारे पास टैक्सेबल LTCG आता है 371,488। अब हमने ये कहा था इफ अमाउंट डिपॉजिटेड इन CGDS इज नॉट यूटिलाइज्ड और इज पार्शली यूटिलाइज्ड, बैलेंस इज चार्ज टू टैक्स इज डीम्ड कैपिटल गेन बट प्रोपोर्शनेटली। हमने 8 लाख रुपए जो थे वो विड्रॉ करवाए, यूटिलाइज करे 5 लाख, तो अमाउंट अनयूटिलाइज आया 3 लाख रुपीस।
तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा LTCG इंटू अमाउंट अनयूटिलाइज्ड डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन एंड द अमाउंट कम्स आउट टू बी 185,744 जो है हमारा डीम्ड कैपिटल गेन बट प्रोपोर्शनेटली। अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पशन पे। कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट्स in case of shifting of industrial undertaking from urban area to factory in rural area. Who can claim the exemption? Any taxpayer. On transfer of short-term or long-term capital asset being land and building, plant and machinery, these assets should be transferred in order to shift an industrial undertaking from urban area to rural area. हमने अर्बन एरिया की फैक्ट्री के प्लांट एंड मशीनरी बेचा या लैंड एंड बिल्डिंग बेचा। इसको बेचने के कारण जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, उससे हमने क्या खरीदा? न्यू प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री कहां पर है? ऑफ फैक्ट्री इन रूरल एरिया। अर्बन एरिया की फैक्ट्री के एसेट बेचे, बेचने के बाद जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, उससे हमने न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदी या लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी ऑफ फैक्ट्री इन रूरल एरिया 1 year बिफोर सेल और 3 years आफ्टर सेल। फुल एग्जेम्पशन इज प्रोवाइडेड आइदर 1 year बिफोर सेल और 3 years आफ्टर ट्रांसफर। Full exemption is provided. Post condition: newly purchased assets if sold within 3 years, exemption is taken back. सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज है कि अगर हम फर्नीचर भी बेचते हैं तो फर्नीचर इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमने प्लांट एंड मशीनरी बेची या हमने लैंड एंड बिल्डिंग बेची ऑफ फैक्ट्री इन अर्बन एरिया, उसको बेचने से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, उससे हमने नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी या लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी ऑफ फैक्ट्री इन रूरल एरिया विद इन 1 year बिफोर सेल और 3 years आफ्टर सेल। फुल एग्जेम्पशन इज प्रोवाइडेड। अब ये एग्जाम्पल है। नेट कंसिडरेशन, कॉस्ट, डेट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 है, दिस इज द अदर नेम ऑफ रिटन डाउन वैल्यू। हम साथ साथ ये क्वेश्चन करते हैं। जैसे नेट सेल प्राइस, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, दिस इज द नेट सेल प्राइस। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 2, दिस इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर 50 सबसेक्शन 2 है, दिस इज द अदर नेम ऑफ रिटन डाउन वैल्यू। हमने रिटन डाउन वैल्यू माइनस की। आपको पता है कि अगर रिटन डाउन वैल्यू हम माइनस करते हैं तो ऑलवेज देयर इज आइदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया 202 4 times 0 276,0000, देन 45,000। हमने क्या करा, जो फर्नीचर का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है दैट इज नॉट एलिजिबल टू गेट एग्जेम्पशन, हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग का ऐड किया, दैट कम्स आउट टू 478 4 times 0। अब आता है हमने क्या इन्वेस्ट किया। हमने न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 10 लाख की, न्यू लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी 18,50,000 की, फर्नीचर भी खरीदा लेकिन इट वोंट बी कंसिडर्ड। तो हमने जो नई प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी उसकी हमें एग्जेम्पशन मिलेगी। तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आया 1934 times 0। लेकिन हम फर्नीचर जो है, फर्नीचर की परचेज प्राइस को कंसिडर नहीं करेंगे और जो फर्नीचर का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसे एज इट इज ऐड कर देंगे। तो अल्टीमेटली हमारा टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है 1975,000। नेक्स्ट आता है 54GA, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट्स इन केस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
Who can claim the exemption? Any taxpayer. On transfer of short or long-term capital asset, being land and building, plant and machinery, these assets should be transferred in order to shift an industrial undertaking from urban area to special economic zone. हमने क्या करा? हमने सेल की ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ फैक्ट्री इन अर्बन एरिया. इससे हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ. इससे हमने क्या खरीदी? न्यू प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ फैक्ट्री इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन और फेयर हाउसिंग जोन, जो अर्बन एरिया में भी हो सकता है, जो रूरल एरिया में भी हो सकता है. सेम विद इन 1 year बिफोर सेल और 3 years आफ्टर सेल, फुल एग्जेम्पशन इज प्रोवाइडेड. सेम याद रखना है, फर्नीचर जो है is not considered to get exemption. Furniture can be taken from one place to another, so that is not eligible to get exemption. इसके बाद आता है withdrawal of exemption. Newly purchased assets if sold within 3 years, exemption is taken back because 3 years जो है that is the lock-in period. अब आते हैं हम 54H. Exemption of capital gain on transfer of residential property if capital gain is invested due to acquisition. इसमें एक पॉइंट याद रखना है, the date when compensation amount is actually received, capital gain is computed from that date. हम करते हैं capital gain arising on transfer of residential house property shall be exempted if such capital gain is invested in subscription of shares of a company which qualifies to be an eligible startup subject to specific conditions. In case compensation on compulsory acquisition is received after the date of transfer, the period available for investment should be counted from the date when compensation amount is actually received. अब आते हैं हम exemptions under section 10. Income from sale of shares in certain cases under section 36. Any income arising from transfer of long-term capital asset being eligible equity shares purchased on or after first date of March 2004 and held for the period of 12 months or more, full LTCG is exempted. 1037 में क्या आता है? Income from long-term capital asset being self-cultivated urban agricultural land on compulsory acquisition. Agricultural land in urban area का acquisition हो जाता है, उसके कारण जो compensation मिलती है, अगर हमें long term capital gain होता है, full long term capital gain is exempted. Next आता है long term capital gain on transfer of shares or securities covered under security transaction tax. अगर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, फुल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज एग्जाम्प्टेड. इन शेयर्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को ना हम सेट ऑफ कर सकते हैं, ना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट दिस एग्जाम्पशन हैज बीन विथड्रॉन with effect from assessment year 1920. So this is meant only for theoretical purpose. Income from transfer of assets of an undertaking engaged in the business of generation, transmission or distribution of power. Any income being LTCG arising on or before 31/3/2006 and transfer is made to Indian company which is notified under section 81A, full long-term capital gain is exempted under section 10 subsection 40. ये याद रखना है कि सारी की सारी exemptions under section 10, this is provided only from long-term capital gain, and this is important from theory point of view also. Then आता है set off and carry forward of capital losses. जब भी हम कैपिटल गेन के क्वेश्चंस करेंगे तो these points are important. Short term capital loss is to be set off from STCG and LTCG, but long term capital loss is set off from long term capital gain only.
And if capital loss is not set off in same previous year, such loss is carried forward for 8 succeeding previous years. Short-term capital loss is carried forward for 8 succeeding previous years to be set off from STCG and LTCG, but long-term capital loss is carried forward for 8 succeeding previous years to be set off from LTCG only. इसलिए हम क्या करते हैं, अगर सपोज हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 30,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ हमें 20,000, तो हमारे पास कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचा, 10,000। तो सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ करते हैं। अब हम करते हैं, हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आया 50,000 का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था मेरे पास 40,000। तो बाकी का हम किस में से ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचा था वो कितना बचा था, 10,000। तो टैक्सेबल कैपिटल गेन कितना आया, निल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, पहले हम लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ करेंगे, बिकॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इज सेट ऑफ ओनली फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इज सेट ऑफ फ्रॉम STCG as well as from LTCG. अब at last we are going to do the important question. Important questions कौन से हैं, explain the provisions of income tax relating to computation of capital gains. तो इसमें हमें computation of capital gains तक करना है. What do you mean by capital gains? How capital gains are calculated? Explain the exempted capital gains, जिसमें हमें exemptions देनी है. Then आता है define capital gains, how it is calculated, what are the capital gains which are exempted under section 54(2) under section 54(GA). exemptions का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम थियरी पॉइंट ऑफ व्यू. देन आता है define capital gains, how it is calculated, what are the capital gains which are exempted under section 54, 54B, 54D, 54EC. और ये है सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो 5 मार्क्स के लिए आते हैं. तो इस चैप्टर में थियरी एज वेल एज practical both is important, but theory is far more important, so do concentrate on theory also. So this is the end of this chapter. Thank you so much.